want to teach you a little bit and then we'll go into prayer. मैं आपको थोड़ा बहुत सिखाना चाहता हूँ, फिर हम प्रार्थना में चलेंगे. But I want you to ask this question to yourselves. पर मैं चाहता हूँ कि ये सवाल आप अपने आप से पूछें आज. Who are you in the kingdom? Are you an accessory or are you a weapon? कौन है आप राज्य में? एक सजावट की चीज है या एक हथियार है? Because an accessory is just for the show. क्योंकि एक सजावट की चीज सिर्फ दिखावे के लिए होती है. There is no function. उसका कोई काम नहीं होता. You can hang a gun that doesn't work on your wall. एक ऐसी बंदूक अपनी दीवार पर टांग सकते हैं जो काम नहीं करती. But you cannot use that gun. पर उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. Do I just look like Christian, talk like Christian, walk like Christian? क्या मैं मसीह सा दिखाई देता हूँ, बातें करता हूँ, चलता फिरता हूँ मसीहों की तरह? What does it even mean to be a Christian? मसीह होने का अर्थ क्या है? Is it somebody who goes to church every Sunday? क्या कोई है जो हर संडे चर्च जाता है? A Christian is somebody in whom the anointed one lives. मसीह वो है जिसके अंदर वो अभिषिक्त रहता है. Amen. आमीन. And when the anointed one lives in you, और जब वो अभिषिक्त आपके अंदर रहे, you live differently. तो आप एक अलग तरह का जीवन जियोगे. You become a sharp weapon in the hands of God against the kingdom of darkness. आप एक तेज धार हथियार होगे परमेश्वर के हाथ में अंधकार के राज्य के विरुद्ध. And God can take you as a weapon and pierce into regions where the gospel has not gone before. He can pierce you into traditions which are ungodly and send you as the beacon of light with His power. परमेश्वर आपको एक ऐसा हथियार लेकर के उस क्षेत्र में भेज सकता है जहां पर अभी तक सुसमाचार नहीं गया, या जहां पर रीति रिवाज है, मरे हुए ट्रेडिशंस हैं, उनको भेदते हुए परमेश्वर आपका इस्तेमाल एक हथियार की तरह, एक ज्योति की तरह कर सकता है. Amen. You know, so many people told me, आज बहुत लोगों को 4 घंटे लगे, कईयों को 5 घंटे लगे चर्च आने में. Many people told me some took 4 hours, some took 5 hours to reach here today. तब भी 5,000 लोग पूरी रात की प्रार्थना. This is revival. Even then 5,000 people gathered here for whole night, for all night prayer. ये बेदारी ही तो है. Amen. You are in the midst of a revival. बेदारी आएगी नहीं, बेदारी आ चुकी है. आप एक बेदारी के बीच में है. Revival is not coming, the revival is here. Amen. और आपको पहचानना जरूरी है. And you need to identify. हमें यहूदियों की तरह नहीं होना. मसीह आएगा, मसीह आएगा, मसीह आके चला भी गया, अभी भी कह रहे मसीह आएगा. We shouldn't be like the Jews who said the Messiah will come, Messiah will come. Messiah came and went and they're still waiting for the Messiah. दिल्ली बेदारी आ चुकी है. Revival has come to Delhi. जब रोडें जाम है, पानी से भरी हैं, तब भी 5,000 लोग पूरी रात प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे हैं. ये बेदारी है. When the roads are blocked with water, the people are gathered. 5,000 are gathered the whole night prayer. This is revival. Amen. We are in the midst of a revival. हम एक बेदारी के बीचों बीच हैं. And it will only grow. और ये सिर्फ बढ़ेगा यहां से. और Hallelujah. We are experiencing something that the capital of India has never experienced before. हम कुछ ऐसा अनुभव कर रहे हैं जो भारत की राजधानी ने आज तक अनुभव नहीं किया था. And what a privilege that we are a part of it. और क्या ही बड़ा सौभाग्य है कि हम इसका हिस्सा हैं. Amen. Come on, say this after me. मेरे साथ कहें. Lord, whatever you will do on this earth, let me be a part of it. प्रभु, जो कुछ आप इस पृथ्वी पर करने वाले हो, मुझे उसमें भाग होने दो. Lord, whatever you will do in this nation,
Let me be a part of it. प्रभु, जो कुछ आप इस देश में करने वाले हो, उसमें मेरा भी हिस्सा होने दो। हम अपने समय में इस देश को प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटना टेकते हुए देखेंगे। We will see this nation come to its knees before the Lord वो Jesus कहता है, in मैं our अपने time. नाम की शपथ खा के कहता हूं, हर एक जाति धारा की तरह मेरे पास बह के आएगी। He says, I will swear on my own name that every tribe will flow to me like a river. जातियां, अलग अलग tribe. संप्रदाय, Different communities. हर जात से परमेश्वर कह रहा है, आओ मेरे भवन में। To every tribe, the Lord is saying, come into my house. हालेलुया। Hallelujah. वाह, आप और मैं धन्य हैं। You and I are blessed. We are blessed. हम धन्य हैं। We are blessed. हम धन्य हैं। Amen. कितने लोगों ने वचन में पढ़ा है, जब प्रभु यीशु मसीह काना में जो शादी हुई वहां गया और उसने पानी को दाखरस बनाया, How many have read that Jesus went to this wedding at Cana and he turned the water into wine? और जो शादी का जो प्रबंधक था उसने यीशु मसीह से कहा, सारे लोग पहले बेस्ट वाइन रखते हैं मगर तूने तो अंत में बेस्ट वाइन रखी है। And the manager of the feast, he said, everyone keeps the best wine at the first, but you've kept the best wine for the last. हालेलुया। हम अंत के समय में We are in हैं the और end परमेश्वर ने बेस्ट वाइन अंत के समय के लिए रखी है। And God has kept the best wine for the end times. Amen. Guys, can you just Hallelujah. Best wine, बोलो बेस्ट वाइन। यानी जो काम आपने प्रेरितों के कार्य में होते हुए नहीं देखे, वो आप आज की कलीसिया में होते हुए देखोगे। That means the things you did not see in the book of Acts, you will see it happening in the churches today. Because the word of God says that the glory of the latter house is going to be greater than the former one. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि बाद वाले घर की जो महिमा है वो पहले वाले घर से बहुत ज्यादा बड़ी होगी। Amen. Hallelujah. The future of the church is glorious. कलीसिया का भविष्य महिमा से भरा हुआ है। I said the future of the church is अरे glorious. मैंने कहा कलीसिया का भविष्य महिमा से भरा हुआ है। Amen. Jesus Christ isn't coming for a weak, cowardly, wimpy church. Jesus is coming for a victorious, blemishless, glorious church. यीशु मसीह एक कमजोर, हारी हुई, डरपोक कलीसिया के लिए नहीं, लेकिन एक शक्तिशाली, सामर्थ से भरी, जयवंत, महिमा से भरी कलीसिया के लिए आ रहा है। Amen. I'm not saying this to motivate you. मैं आपको प्रोत्साहित करने के लिए नहीं कह रहा हूं ये बात। Let me prophesy one thing. It's being recorded. Write it down in your diaries. Very soon, the churches in India are going to fill stadiums. The Church of India is going to stadiums because no building will be able to contain the great harvest that is going to come in this nation in the name of Jesus. इस बात को लिख लो जो मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि बहुत ही जल्द भारत देश की कलीसियाएं स्टेडियम्स में हुआ करेंगी, क्योंकि कोई जगह इतनी बड़ी नहीं है होगी कि कलीसिया को समा पाए। Amen. Hallelujah. In the book of Amos, the Bible says, how can two walk together if they don't agree? आमोस की किताब में लिखा है कि दो जन जब सहमत ही नहीं है तो साथ कैसे चलेंगे। And the Lord is telling us, और hey, प्रभु हमें कह रहा है, you guys are thinking too small. तुम लोग बहुत छोटा सोच रहे हो। He is a God of more than enough. वो हद से ज्यादा का परमेश्वर है। He is a God of more than enough. वो हद से ज्यादा का परमेश्वर है। Amen. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord Jesus. So, we just came back from Raipur, and I'm telling you, हम लोग रायपुर से भी वापस आए हैं। I am just experiencing this grace. मैं ये अनुग्रह अनुभव कर रहा हूँ। The organizers they had arranged for 3,000 people, 15,000 people came there.
जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने 3000 लोगों के लिए तैयारी की थी, 15,000 लोग आ पहुंचे वहां पर। Amen. People were on the streets in the divider. They were sitting in the divider to hear the word. लोग सड़क पर थे और डिवाइडर पे बैठे हुए थे वचन सुनने के लिए। The Lord did marvelous miracles. परमेश्वर ने अद्भुत Many चमत्कार किए। deaf and dumb from birth, they started to speak, they started to hear. They were we'll show you that video on Sunday. बहुत से जो जन्म से गूंगे बहरे थे वो सुनने बोलने लगे। हम आपको संडे को दिखाएंगे वीडियो। But you know, when a church will be glorious, पर आप जानते हो कब एक कलीसिया महिमान्वित होगी? when not just the pastor, but when every one of you starts to walk in your God-given authority, जब in सिर्फ signs, wonders and miracles. जब सिर्फ पास्टर ही नहीं लेकिन आप में से हर कोई अपने परमेश्वर के द्वारा दिए गए अधिकार में चलने फिरने लगेंगे, चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम करने लगेंगे। And that is the reason we have done this all-night prayer meeting, यही कारण है कि हमने ये ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग की so that you will catch the fire. ताकि आप उस आग को पकड़ लो। Amen. आमेन। One spark is enough to set a forest ablaze. एक चिंगारी काफी है एक जंगल को आग लगाने के लिए। Amen. आमेन। Amen. If you're a spark tonight, you're going back as a flaming fire in the name of Jesus. अगर आप एक चिंगारी हो तो आज रात यहाँ से धधकती हुई आग बनकर वापस जा रहे हो यीशु के नाम में। Hallelujah. Amen. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Hallelujah. I just quickly want to teach you a little bit. जल्दी से आपको थोड़ा सिखाना चाहता हूँ, शिक्षा देना चाहता हूँ। Because there are many anti-Christ teachings that have entered in the church. क्योंकि बहुत सी मसीह विरोधी शिक्षाएं हैं जो कलीसियाओं में आ पहुंची हैं। And whatever I'll teach you is just scripture, not my personal interpretation. और जो कुछ मैं आपको सिखाऊंगा वो केवल जो लिखित वचन है वो है, मेरा खुद का अनुवाद नहीं होगा। Amen. अगर कभी गलती में नहीं जाना चाहते सो केवल वचन से ही वचन का अनुवाद करो। If you never want to go into error, then only interpret the word by the word. Amen. चलिए मत्ती 12 उसका 22 से 26 मैं चाहता हूं आप ध्यान से सुनिए इसको। मत्ती 12 Matthew 12 22 से 26 22 to 26। मैं जल्दी से हिंदी में बोल रहा हूँ। ठीक है, हिंदी सबको आती है यहाँ पे, राइट? इंग्लिश नहीं बोलेंगे इस समय क्योंकि बहुत सारे स्क्रिप्चर्स मेरे को आपको सिखाने हैं। तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया और वह बोलने और देखने लगा। आमीन। सो लोग यीशु मसीह के पास एक गूंगे और अंधे को लाए, प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगा कर दिया। आगे इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे कि यह क्या दाऊद की संतान है। आगे परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बालजबूल की सहायता के बिना दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालता। जो उस समय के धर्म गुरु थे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पे इल्जाम लगाया कि जो ये चिन्ह चमत्कार करता है ये दुष्ट आत्माओं की शक्ति से करता है। The religious leaders of the time put an allegation of the Lord Jesus saying that he does these miracles by the power of the demons. उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा जिस किसी राज्य में फूट होती है वो उजड़ जाता है और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना न रहेगा। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा। आमीन। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उन्होंने क्या इल्जाम लगाया। So they put this allegation on the Lord Jesus. इस बात को ध्यान से सुनो। Hear carefully. जिस समय में प्रभु यीशु मसीह था The times when that Jesus was उस there, टाइम में फरीसी बोलते थे हम पिता को मानते हैं, the Pharisees used to say, we believe in the Father, तू दुष्ट की तरफ से। you are from the devil. आमीन। Amen. आज के समय में Today, कई मसीह ऐसे हैं जो बोलते हैं हम यीशु मसीह को मानते हैं, there are many believers who say, we believe in Jesus. मगर ये जो पवित्र आत्मा का अभिषेक है ये परमेश्वर की तरफ से नहीं। But the anointing of the Holy Spirit is not from God. Hear this. सुनिए। They are not anti-Jesus, they are anti-Christ. वो यीशु के विरुद्ध नहीं है, वो मसीह के विरुद्ध They है। are against the anointing. वो उस मसीह के विरुद्ध है। Are you guys with me? मेरे साथ हो? तो वो आपको बोलेंगे
अब के समय में कोई चिन्ह चमत्कार, ये चंगाइयां करते हैं, ये चंगा, ये प्रभु नहीं करता, ये दुष्ट आत्माएं निकालते हैं, ये नहीं है। They will tell you there is no healings, there are no more healings, there is no, they do it by demons. अन्य भाषा में प्रार्थना मत करो। They'll tell you don't pray in tongues. केवल क्या करो, चर्च में आओ, एक मरा हुआ वचन सुनो और मरा हुआ जीवन जियो। Only come to church, hear a dead word and live a dead life. अरे परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का राज्य बातें नहीं सामर्थ्य है। The word of God says that the kingdom of God is not mere talks but the power of God. Amen. And Apostle Paul says, when I come to you, I don't come with the persuasive words of human wisdom, but I come with the demonstration of the Holy Spirit. यीशु जब पौलुस आते कहते हैं मैं तुम्हारे पास मनुष्य की चिकनी चुपड़ी बातें, बुद्धि की बातें लेकर के नहीं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य का प्रकटीकरण लेके आया हूं। Amen. देखिए मत्ती 12:31 और 32 में फिर यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया उन लोगों को। What did Jesus tell them in Matthew 12? इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप कहीं ऐसी किसी जगह जाते हैं जहां पे आपको सिखाया जाता है, बहुत केयरफुल रहिए, जल्दी से जज मत करिए। अगर कुछ नहीं समझते तो मुंह बंद रखो, पर पवित्र आत्मा के विरोध में ना बोलो। This is why I'm telling you, if you go somewhere, if you heard something that you do not understand, do not be quick to speak against the Holy Spirit. Keep your mouth shut. Amen. यीशु मसीह ने क्या कहा, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। क्यों बोला उसने? उन लोगों ने क्या उन लोगों ने पवित्र आत्मा को गाली दी? नहीं। Why did he say that? Did they blaspheme the Holy Spirit? उन्होंने यीशु को कहा कि ये दुष्ट आत्माओं की शक्ति से ये कर रहा है, जबकि वो किसकी शक्ति से कर रहा था? तो उन्होंने पवित्र आत्मा को क्या बोला? एक दुष्ट। They said that Jesus does these things by the power of demonic spirits. So what did they call the Holy Spirit to be? A demonic spirit. Amen. Be very careful. बहुत ध्यान दो, Be very watchful. बहुत देख के परख के चलो। मैं थोड़ा सा इस बारे में, I don't have time because I want us to pray more. मैं जरा प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हम प्रार्थना करें। But there is a very famous teaching spreading in North India right now. लेकिन इस समय नॉर्थ इंडिया में बहुत शिक्षा फैल रही है। And there are many preachers now that are discourage ही नहीं कर रहे, लोगों को वापस खींच के ला रहे हैं कि अन्य भाषा में प्रार्थना मत करना। बहुत से प्रचारक है, वो सिर्फ निराश ही नहीं कर रहे, लोगों को रोक ही नहीं रहे, but they are telling them do not pray in tongues. उसको कहते हैं राबा शाबा कर रहे हो आप। They say you're doing rabba shaba. It's very dangerous. बहुत ही खतरनाक बात है ये, It's very dangerous. बहुत खतरनाक बात है। मैं आज आपको वचन से कुछ सिखाना चाहता हूँ I want to teach you something from the word today, कि आप वचन से इस बात को समझो। so that you understand this from the word. हर एक विश्वासी पवित्र आत्मा से नहीं भरा हुआ है। Every believer is not filled with the Holy Spirit. Let me say it again. मैं दोबारा क्या? I'll show it to you from the word. मैं आपको वचन से दिखा देता हूँ। Every believer is not filled with the Holy Spirit. हर विश्वासी पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं है। आप लोगों ने सुना मैंने क्या कहा? Did you hear what I said? हर विश्वासी Every believer पवित्र आत्मा से नहीं भरा। is not filled with the Holy Spirit. Let's see. Acts 19:1-2. प्रेरितों के काम 19 उसका 1 और 2। अब देखते हैं। जब अपोलोस कुरिन्थियुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश में होकर इफिसस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर, किसको देखा पौलुस ने? चेलों को देखा। चेलों को यीशु मसीह ने क्या कहा था? What did Jesus tell the disciples? जॉन 8 में यीशु मसीह ने कहा to the Jews who believed, if you abide in my word, you are my disciples indeed. So disciples are those who already believe. यूहन्ना 8 में यीशु ने बोला अगर तुम मेरे वचन में बने रहो तो तुम मेरे चेले हो। चेले वो हैं जो वचन में बने हुए हैं। So चेले कौन है? Who are disciples? जो विश्वास करते हैं। Those who are believers. Amen. Amen. पौलुस किससे मिला? Who did? चेलों से मिला इफिसस में। Who did Apollos? आगे क्या बोला? उसने कहा क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? Did you receive the Holy Spirit when you believed?
Did you receive the Holy Spirit when you believed? क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया जब विश्वास So these किया? guys are already believers. ये लोग पहले से विश्वासी थे. क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया जब तुमने विश्वास Did किया? you receive the Holy Spirit when you believed? उन्होंने उससे कहा हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी. They said we haven't even heard about the Holy Spirit. A church without Holy Spirit is a dead church. एक कलीसिया जो पवित्र आत्मा के बिना है वो एक मरी हुई कलीसिया Because है. it is when the Holy Spirit came down, that is when the church was born. क्योंकि जब पवित्र आत्मा उतरा तब कलीसिया का जन्म हुआ था. Amen. See, in the time of Jesus, यीशु के समय में the religious people used to say, I believe in the Father, I don't believe in you, Jesus. धार्मिक लोग कहते थे कि हम पिता को तो मानते हैं पर यीशु हम तुमको नहीं मानते, I don't believe your works. तुम्हारे कामों को भी नहीं मानते. Now, अब in this time, इस समय में religious people say, oh, I believe in Jesus. जो अब के धार्मिक लोग हैं वो कहते हैं हम यीशु को तो मानते But हैं I don't believe in these Holy Spirit. पर हम ये पवित्र आत्मा की ये चीजों We को don't नहीं believe मानते. in the works of the Holy हम Spirit. पवित्र आत्मा के कामों को नहीं मानते. It's the same religious spirit. ये वही धर्म की आत्मा है. Amen. All right. So उन्होंने कहा हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी. They आगे said, we haven't even heard about the Holy Spirit. ओके 19:6 में जाइए. 6 में मैं आपको कुछ दिखाना Verse चाहूंगा. 6. उन्होंने पवित्र आत्मा के बारे में नहीं सुना था. They had not heard about the Holy जब Spirit. पौलुस ने उन पर हाथ रखे, किस पर हाथ रखे? Whom did Paul lay his किस hands पे हाथ on? रखे? चेलों पे जो पहले से विश्वासी थे. On the disciples who were already believers. Amen. आपकी बाइबल में भी है. Is it in your Bible also? जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे. When Paul laid hands on them, the Holy Spirit came upon them and they spoke with tongues and prophesied. कौन सा आत्मा उतरा जब वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे? Which spirit came upon them when they पवित्र began to speak in आत्मा tongues? उतरा. अन्य भाषा पवित्र आत्मा के द्वारा वरदान The है. Holy Spirit came down and they spoke in tongues. Tongues is a gift from the Holy Spirit. कभी भी इसकी बुराई और निंदा मत करना, Never criticize this. क्योंकि कई क्रिस्त विरोधी प्रचारक हैं आज. Because there are many anti-Christ preachers. Amen. Devil hates the anointed church. शैतान को नफरत है अभिषेक से भरी कलीसिया Devil से. hates an anointed believer. शैतान को नफरत है एक अभिषेक मसीह से. Because the Bible says in Isaiah 10:27, it is the anointing that breaks the yoke of the devil. क्योंकि यशायाह 10:27 में वचन कहता है जो अभिषेक है वो शैतान के जुए को नाश कर देता है. प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर मैं पवित्र आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो जान लो तुम्हारे बीच में परमेश्वर का राज्य आ चुका है. Lord Jesus said, if I cast out demons by the power of the Holy Spirit, then know that the kingdom of God has come to you. शैतान को पता है कि पवित्र आत्मा से भरा हुआ विश्वासी मेरे राज्य को तहस नहस कर देगा. The devil knows that a Holy Spirit filled believer will destroy my kingdom. तो मैं क्या करूंगा? What should I do? मैं कुछ प्रचारकों को अपनी तरफ करूंगा और विश्वासी के जीवन में जो सोर्स है पावर का और सामर्थ का उस पर अटैक करूंगा. I will bring some preachers on my side and I will attack that source of power which is against my kingdom. Amen. It just breaks my heart that there are some people who are on a mission to discourage believers from praying in tongues. मेरा दिल टूटता है देखकर कि कुछ लोग इसी मकसद से निकले हुए हैं कि विश्वासियों को रोके अन्य भाषा. Is that the gospel? क्या वो Did सुसमाचार है? Jesus say go into all the world and tell people not to pray in tongues? क्या यीशु ने ये सुसमाचार प्रचार करने को कहा कि दुनिया भर में जाओ लोगों को अन्य He भाषा said मत बोलो? go in all the world, preach the gospel, heal the sick, cast out demon, cleanse the lepers, raise the dead. Freely you have received, freely give. उसने कहा दुनिया भर में जाओ चेले बनाओ दुष्ट आत्माओं को निकालो चंगाई करो बीमारों को चंगा करो आजादी से तुम्हें मिला आजादी से दो.
कुछ लोग कहते हैं अरे ये अंकित सजवान जो है ना चंगाई चंगाई, हाँ करता हूँ चंगाई चंगाई, क्योंकि यीशु ने आज्ञा दी है जाओ और बीमारों को चंगा करो। Some people say Ankit Sajwan talks about healing. Yes, because Jesus commanded me to go and heal अरे the people. यीशु की आज्ञा माननी है तो पूरी मानो। उसने नहीं कहा केवल प्रचार करो, उसने कहा प्रचार करो और बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो और ऐसा करके मेरे राज्य को प्रकट करो। If you want to obey Jesus' commandment, then completely obey his command. He did not say go and preach. He said go preach the gospel, heal the sick, cast out demons. क्योंकि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां हर किसी के पास एक कथा है। आप उन्हें बाइबल से कथा सुनाओगे, वो आपको 10 कथाएं अपनी सुनाएंगे। Because we live in a country where everybody has a fairy tale, a tale to tell you. You'll tell them a story from the Bible, they will tell you 10 stories. जिस दिन अंधे की आंखें खोल दोगे, सारी बहसबाजी बंद हो जाएगी। The day you will open a blind eye, the day you will open a blind eye, all the debates will cease immediately. हमें बहस करने के लिए नहीं बुलाया है We are परमेश्वर। not called to have a उसने कहा debate. मेरे राज्य की सामर्थ को प्रकट करो। He said manifest the power of my kingdom. तुम सामर्थ पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और तुम मेरे गवाह ठहरोगे। You will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you shall be my witnesses. आपके ऊपर है। मैंने अभी आपको बोला, आपको एक्सेसरी बन के रहना है किंगडम में या आपको एक धारदार हथियार बनना है। I said it's up to you. Do you want to be a necessary in the kingdom, or do you want to be a powerful weapon? अगर आपने चोर की तरफ पिस्तौल दिखाई, उसे पता है नकली हो गए नकली पिस्तौल। If you show a gun to a thief and the thief knows, शैतान it को भी doesn't पता है work. कौन असली और कौन नकली है। Even the devil knows who is real and who is fake. बिना अभिषेक के असली नहीं हो सकते। Without the anointing, no one can be real. Amen. हालेलुया। कई लोग कहते हैं हाँ जी हमें तो पवित्र आत्मा मिल गया जब हमने विश्वास किया। अगर केवल विश्वास करने में पवित्र आत्मा मिल जाता तो पौलुस क्यों इन चेलों को कह रहा है क्या तुम्हें पवित्र आत्मा मिला जब तुमने विश्वास किया? Some people say, yes, we received the Holy Spirit when we believed. Then why is Paul asking these believers, did you receive the Holy Spirit when you believed? I wish I'll take you with a detailed teaching. Tonight is not the night for teaching, but there is a difference between being sealed with the Holy Spirit and being filled with the Holy Spirit. मैं गहरी शिक्षा में कभी फिर ले जाऊंगा, लेकिन एक अंतर है पवित्र आत्मा की छाप हम पर लगने में और पवित्र आत्मा से भरने में। हर एक विश्वासी के ऊपर पवित्र आत्मा की छाप है, मगर वो पवित्र आत्मा से भरा नहीं है। There is a seal of the Holy Spirit upon every believer, but not every believer is filled with the Holy Spirit. Ephesians 1:13 इसमें लिखा है जब आपने मसीह को अपनाया तो आपको मार्क कर दिया परमेश्वर ने। जैसे मार्क ऑफ द बीस्ट होता है वैसी मार्क ऑफ द होली स्पिरिट भी होता है। पवित्र आत्मा ने मार्क कर दिया आपको। It says when you accepted the Lord put a mark on you. Just as there's a mark of the beast, there's a mark of the Holy Spirit that the Lord has put on you. जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लग गई। When you heard the truth, the gospel of your salvation in whom you believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Hear this. सुनिए, So every believer is sealed with the Holy Spirit, but every believer is not filled with the Holy Spirit. हर एक विश्वासी पर पवित्र आत्मा की छाप लगी हुई है, पर हर एक विश्वासी पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं है। Hallelujah. Acts 2:4. प्रेरितों के काम 2 उसका 4। And they were all filled with the Holy Spirit. और वे सब भर गए पवित्र आत्मा से। They were all filled with the Holy Spirit. वे सब भर गए पवित्र आत्मा से। And what happened when they were filled with the Holy Spirit? They began to speak with other tongues. और फिर क्या हुआ जब वो भर गए पवित्र आत्मा से? वो अन्य भाषाओं में बोलने लगे। सबसे बड़ा झूठ जो शैतान ने मसीह की देह को दिया है, हर किसी को नहीं मिलती। The biggest lie the devil has given to the body of Christ is not everyone gets the power. मैं आज तक ऐसे विश्वासी को नहीं मिला जो सच में भूखा है, मांगता है और परमेश्वर नहीं देगा। I have not met one such believer who is hungry and asks God and God will not give them Holy Spirit. ऊपरी कोठी में कितने विश्वासी थे? How many believers were there in the upper room? कितने थे? How many?
कितनों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा? How many did the Holy Spirit fall upon? अरे भैया, तो सबके सब भर गए, बाइबल कहती है। All of them were filled with the Bible says. जोएल की प्रतिज्ञा क्या है? I will pour out my spirit on some flesh, नहीं, I will pour out my spirit on all flesh. What is the promise of the book of Joel? मैं अपना आत्मा कुछ पर उंडेलूंगा नहीं, मैं अपना आत्मा सब पर उंडेलूंगा है। What does all mean? सब का क्या मतलब होता है? All in Greek means all, and all in Hebrew means all. यूनानी में सब का मतलब सब ही होता है और इब्रानी में भी सब का मतलब सब होता है। Amen? Hallelujah. Every time Holy Spirit came upon disciples, believers, there was an evidence of speaking with tongues. Every time. हर बार जब पवित्र आत्मा उतर के आया चेलों के ऊपर, एक सबूत था। हर बार जब पवित्र आत्मा उतरा तो जब हम मोती नगर में थे तो एक बहन आई और बोला, पास्टर जी, पवित्र आत्मा सबको नहीं मिलता मगर मेरा बहुत मन है। मैंने कहा, किसने बोला बहन तुम्हें कि पवित्र आत्मा सबको नहीं मिलता? When we were in Moti Nagar, sister came, she said, not everyone gets Holy नहीं, मुझे Spirit. सिखाया गया है कि प्रभु कुछ को देता है। अरे अगर वो कुछ को देता और कुछ को नहीं देता तो पक्षपाती परमेश्वर है। She said, no, I have been taught that he gives Holy Spirit to some but not to all, then he is a उसका partial वचन God. कहता है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, मांगने वाले को परमेश्वर पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? His word says, when you being evil know how to give good things to your children, why would he not give the Holy Spirit to him who asks? The secret to a victorious Christian life is a spirit-filled life. एक जय से भरा मसीह जीवन जो है उसका रहस्य है आत्मा से भरा हुआ जीवन। Not head-filled life, दिमाग भरा हुआ नहीं, spirit-filled life. आत्मा भरा हुआ जीवन। Demons don't care about my head knowledge. दुष्ट आत्माओं को मेरे दिमागी ज्ञान की I परवाह can नहीं है। put PhD and MDiv and whatever I want to put title. Demons don't care about my titles. Demons see, am I filled with the Spirit of the living God or not? मैं PhD, MDiv कितने भी ओहदे लगा लूं, तमगे लगा लूं, दुष्ट आत्मा को परवाह नहीं है। उनको दिखता है कितनी परमेश्वर की सामर्थ्य है मुझ में। Amen. Hallelujah. Isn't that awesome? क्या ये अद्भुत नहीं है? Say spirit-filled life. बोलो आत्मा से भरा जीवन, Spirit-filled life. आत्मा से भरा हुआ जीवन। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रेरितों के कार्य 10वें अध्याय में एक व्यक्ति था कॉर्नेलियस, जिसके घर में एक स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत ने उसके सामने वो प्रकट हुआ और उसने कहा, पतरस को बुलाओ। और उसके बाद पतरस वहां पे आकर प्रचार कर रहा है। और जब पतरस प्रचार कर रहा है तब देखिए क्या हुआ। प्रेरितों के कार्य 10 उसके 44 में देखिए, पतरस बाइबल कहती है, जब पतरस ये वचन बोल ही रहा था तो पवित्र आत्मा, सब सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतरा। मगर लोगों को कैसे पता चला कि पवित्र आत्मा उतरा? In Acts chapter 10, the Bible tells us about Cornelius' house that they call Peter. Let's leave it. I think everybody understands it. पतरस को कैसे पता चला? लोगों को कैसे पता चला कि ये पवित्र आत्मा से भर गए? आगे देखो क्या लिखा है। और जितने खतना किए वे विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। मगर उन्हें कैसे पता चला कि पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है? अगली लाइन, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। यीशु मसीह ने कहा, एक पेड़ कैसे पहचाना जाता है? अपने फल से। जो सिखाते हैं अन्य भाषा नहीं है आज, उनको बोलो एक बीमार को चंगा करो। उनकी मिनिस्ट्री में देखो, क्या दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, क्या लोग बीमार होते हैं, क्या लोग छुटकारा पाते हैं, या वो आपके सर में सूजन ले आते हैं और आपको घमंडी बना देते हैं। क्योंकि
एक विश्वासी के जीवन में जो सामर्थ है उसका स्रोत पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। And Satan knows if he can disconnect you from the source of power, शैतान जाता है अगर मैं इसके सामर्थ के स्रोत से इसको डिस्कनेक्ट कर दूं तो फिर ये ईसाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ईसाई। और मैंने आपको बताया अगर आप हो ईसाई तो शैतान है कसाई। मगर अगर आप हो धधकती हुई आग तो शैतान भाग भाग भाग। Amen. सोचो यीशु मसीह जो वचन है, आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। यूहन्ना 1:14 वचन ने हमारे बीच में डेरा किया, वचन दे धर कर आया और हमने उसकी महिमा ऐसे देखी जैसे परमेश्वर के इकलौते पुत्र की। सो यीशु मसीह स्वयं वचन है। रोज आराधनालय जाता है, कुछ नहीं होता। 30 साल तक आराधनालय जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा। मगर 30वें साल स्वर्ग खुल गए और पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा और उसके बाद पहले दिन आराधनालय गया, दुष्ट आत्मा चिल्लाया। Demons hate the anointing. दुष्ट आत्माएं नफरत करती हैं पवित्र आत्मा के अभिषेक से। हालेलुया।